السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سوال نمبر 6 سے آج کے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 16۔ سوال ہے کہ اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ بالنفی مستعملا لیس۔ سوال نمبر 4 سے شروع کریں گے جی۔ ادخل لیس علی الجمل الآتیۃ الباب مغلق، یہ پڑھ لیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، سوال نمبر 4 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ ادخل لیس علی الجمل الآتیۃ، داخل کریں لیس کو آنے والے جملوں پر۔ داخل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے لیس ذکر کریں گے اور اس کے بعد لیس کا اسم آئے گا جو کہ الباب ہے، اور مغلقن یہ خبر ہے، اور اس کے اوپر با داخل کریں گے۔ با داخل کرنے کی وجہ سے اس کے آخر میں جر آئے گی، کیونکہ با حروف جارہ میں سے ہے، تو لفظ یوں بنے گا الباب مغلق سے لیس الباب بمغلق، لیس الباب بمغلق، لیس نہیں ہے الباب دروازہ بمغلق بند، لیس الباب بمغلق۔ ایک تو یہ طریقہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ الباب اور مغلق ان دونوں کے درمیان لیس کو لے آئیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مغلق کے شروع میں حرف جر لے آئیں اسی طریقے سے، اور آخر میں جر دے دیں، تو ہو جائے گا الباب لیس بمغلق، اور یہ دوسرا طریقہ کار زیادہ بہتر ہے، الباب لیس بمغلق۔ جی ہاں، تنوین ہوگا آخر میں، کیونکہ یہ اس کے شروع میں حرف جر ہے اور اس پر الف لام داخل نہیں ہے، اس لیے۔ الماء بارد، یہاں پر لیس داخل کیجئے، بزرگوں آپ پڑھیں۔ الماء لیس ببارد، الماء لیس ببارد، اور معنی کیا بنے گا؟ پانی ٹھنڈا نہیں ہے۔ جی ہاں، پانی ٹھنڈا نہیں ہے۔ ہشام برید، ہشام بیمار ہے۔ ہشام لیس بمریض، ہشام لیس بمریض، ہشام بیمار نہیں ہے۔ نہیں، یہ کوئی اور جو آن لائن ہے وہ بھی پڑھ رہے ہیں جی۔ ابھی نائمون، میرے ابو سوئے ہوئے ہیں، اور لیس داخل کریں گے تو ابھی لیس بنائمن، ٹھیک ہے، میرے ابو سوئے ہوئے نہیں ہیں۔ الدرس صعب، کیا معنی ہے اس کا؟ ٹھیک ہے،
صحیح. الدرس لیس بصعب. الدرس لیس بصعب بھی درمیان میں داخل کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے. المسجد قریب. المسجد لیس بقریب. نو وائس. دنیا میری آواز سن رہی ہے اور آپ کو آواز نہیں آ رہی. آپ کے ہاں مسئلہ ہوگا کیونکہ ہمارے ہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. با ساتھ کا معنی دیتا ہے لیکن ہر جگہ پر حروف جر اپنا معنی نہیں دیتے. ملانے کے لیے ضرور استعمال ہوتے ہیں لیکن ہر جگہ ضرور نہیں کہ اس لفظ کا وہی معنی ہو. الطفل جوعان. الطفل جوعان کیا معنی ہے اس کا؟ معنی کیا ہے اس کا الطفل جوعان کا؟ جی ہاں، بچہ بھوکا ہے. اور لیس داخل کریں گے تو ہو جائے گا الطفل لیس بجوعان. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ با تو حرف جر ہے اور جر دینی چاہیے، لیکن جس لفظ کے آخر میں الف اور نون ہو، جسے الف نون زائدتان کہتے ہیں، تو وہ غیر منصرف ہوتا ہے اور اس کے آخر میں جر نہیں آتی. جی ہاں. اب آن لائن لوگ جو ہیں تقریباً 92 ہیں، تو گزارش یہ ہے کہ جو جواب دینا چاہتا ہے تو وہ لکھ کر جواب بھیج دے، کیونکہ اگر ہم مائک کھول دیتے ہیں تو پھر ہم سے بالکل پڑھا ہی نہیں جاتا. جیسے عثمان ہے یہ بھی غیر منصرف ہے، الف اور نون زائدتان داخل ہیں، تو اس وجہ سے غیر منصرف پر ایک تو جر نہیں آتی اور دوسرا تنوین نہیں آتی. کیسے؟ جیسے جوعان کو ہم تسنیہ بنائیں. صحیح نہیں، غیر منصرف پہلے سے بنے ہوئے ہیں. جی، دو تسنیہ بنے گا تو پھر ظاہری بات ہے اس میں تبدیلی آ گئی. تبدیلی آ گئی تو وہ منصرف ہو گیا. تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جوعانو ایک بھوکا، جوعانان دو بھوکے. اگر اس طریقے سے کریں گے تو پھر یہ منصرف بن جائے گا. پھر اس صورت میں اس کے آخر میں جو الف اور نون ہے یہ تسنیہ کا ہے، جیسے رجلان کے آخر میں ہوتا ہے. تو رجلان کی جو رفعی حالت ہوتی ہے وہ الف اور نون کے ساتھ آتی ہے، اور نصبی اور جری حالت یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتی ہے. جیسے جاء رجلان رأیت رجلین مررت برجلین، تو ہم کہیں گے کہ طفلان الطفلان جوعانان اور جوعانان. جی ہاں، دونوں بچے دونوں بھوکے ہیں. بجوعان کے نون پر پیش اس لیے نہیں آیا کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے نا، یہ غیر منصرف ہے. اصل میں بجوعان الطفل جوعانوں کی وجہ سے جب ہم نے لیس داخل کیا اور جوعان کے شروع میں با داخل کی تو با تو جر دیتی ہے، بجوعان ہونا چاہیے تھا، لیکن جس اسم کے آخر میں الف اور نون ہو تو وہ غیر منصرف ہوتا ہے، نہ تو اس پر زیر داخل ہوتی ہے اور نہ تنوین. جی ہاں، غیر منصرف پر تنوین بھی نہیں آتی. الطفل لیس بجوعان، یہ الف کے بعد لام بھی داخل کریں گے. سوال نمبر 5 ہے اقرأ المثالین. 2 مثالیں پڑھیں. ثم ادخل لیس علی الجمل الآتیتی، پھر داخل کریں لیس کو آنے والے جملوں پر.
हुआ ताजिरुन, हुआ लैस बिताजिरिन, वही तरीके कार है। हुआ मिनल याबान, हुआ लैस मिनल याबान, माना होगा हुआ ताजिरुन वो ताजिर है, हुआ लैस बिताजिरिन वो ताजिर नहीं है, हुआ मिनल याबानी वो जापान से है, हुआ लैस मिनल याबानी वो जापान से नहीं है। अब यहां पर आप सवाल कर सकते हैं कि हुआ मिनल याबानी, इसके आखिर में भी तो अलिफ और नून है, तो यहां पर हमने जर क्यों पढ़ी? तो इसका जवाब देगा ये मुनसरिफ है, और मुनसरिफ की अलामत ये होती है कि उसके शुरू में अलिफ लाम हो, और यहां पर अलिफ लाम है। मुल्क का नाम है तो पाकिस्तान भी मुल्क का नाम है, अलिफ नून है, लेकिन हम इसको गैर मुनसरिफ पढ़ते हैं। लेकिन जब अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो फिर ये मुनसरिफ हो जाएगा। ममालिक के सारे नाम गैर मुनसरिफ होते हैं, लेकिन अगर अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो वो मुनसरिफ हो जाएंगे। अस्सय्यारतु जमीलतुन, अब आपने फर्क ये करना है कि हर जगह पर लईसा लगाने के बजाय आपने देखना है कि लईसा से पहले जो इस्म है वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। अगर मुज़क्कर है तो लईसा लगाएंगे, और अगर मुअन्नस है तो लईसत। और अगर मुज़क्कर जमा है तो लईसा के बजाय क्या लगेगा? लईसु। अगर जमा मुज़क्कर है तो लईसु, और अगर जमा मुअन्नस है तो लसना। तो हमारे लिए इस्तेमाल करने वाले चार अल्फाज हैं। लईसा वाहिद मुज़क्कर के लिए, लईसत वाहिद मुअन्नस के लिए, लईसु जमा मुज़क्कर के लिए, और लसना जमा मुअन्नस के लिए। लस्तुन्ना ये जमा मुअन्नस हाजिर के लिए इस्तेमाल होता है, लस्तुन्ना। अस्सय्यारतु जमीलतुन, यहां दाखिल करेंगे, जवाब आ गया है, क्या बनाएंगे? जी हाँ, अस्सय्यारतु लैसत बिजमीलतिन, अना गनियुन। ये हमने पढ़ा था कि जब मुतकल्लिम का सीगा हम इस्तेमाल करेंगे तो अना ये पहले से लैस के अंदर मौजूद होता है, और मुतकल्लिम का सीगा इस्तेमाल करेंगे। लस्तु बिगनियिन, अंत फकीरुन, तुम मुहताज हो। जी, लस्त बिफकीरिन, लस्त बिफकीरिन, हिया मिनल इराक, वो एक औरत इराक से है। जी, लईसत मिनल इराक, या हिया लईसत मिनल इराक। नहीं, जरूरी नहीं है, लईसत के अंदर ही पहले से मौजूद है। हम अगर जुमला फेलिया बनाएं तो लईसत बनेगा, और अगर जुमला इस्मिया बनाएं तो हिया को मुब्तदा बनाएंगे और लईसत मिनल इराक को खबर बनाएंगे। नंबर 2 में तो अंत नहीं आएगा, जी हाँ नहीं आएगा उसमें। अना नंबर 2 में तो अंत तो वैसे भी नहीं आना था। अना गनियुन लस्तु बिगनियिन। नंबर 3 अंत फकीरुन लस्त बिफकीरिन, हिया मिनल इराक लईसत मिनल इराक, या हिया लईसत मिनल इराक। नंबर 5 है नहनो अस्कियाउ। जी, क्या पढ़ेंगे इसे? तो यहाँ अस्कियाव, ये जो हमजा है आखिर में अस्कियाव के, तो इस हमजा पर क्या पढ़ेंगे? जम्मा फतहा कसरा, जबकि इसके शुरू में हम बा दाखिल कर रहे हैं, और जुमला बनेगा लसना बी, लसना बी अस्किया। अब अस्किया अ या ए या ओ, क्या पढ़ेंगे? बा दाखिल हो रही है तो क्या पढ़ेंगे?
اب لوگ بہت جلدی پھسل جاتے ہیں. اسکیا ساکن پڑھ دیں, جان چھوٹ جائے. بندہ جو بھی سمجھنا چاہے وہ سمجھ لے, اپنی مرضی سے جو اعراب دے دے. جی ہاں, یہ غیر منصرف ہے, اور کل ہی ہم نے بتایا تھا کہ جس کے آخر میں الف ممدودہ ہوتا ہے وہ غیر منصرف ہوتا ہے. جس کے آخر میں الف ممدودہ ہوتا ہے وہ غیر منصرف ہوتا ہے, اور غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے. ایک مرتبہ پھر دہراتے ہیں, جس کے آخر میں الف ممدودہ ہوتا ہے وہ غیر منصرف ہوتا ہے, اور غیر منصرف کے آخر میں کسرہ اور تنوین نہیں آتے. لہذا نحنو اسکیاء لسنا بے اسکیاء اب پڑھیں گے, کیونکہ جو غیر منصرف کی جو جری حالت ہوتی ہے وہ فتحہ کے ساتھ آتی ہے. اگر غیر منصرف پر جر آ رہا ہو تو اس کے اوپر ڈائریکٹ زیر دینے کے بجائے ہم زبر پڑھتے ہیں. جی ہاں, اسکیاء زکیون کی جمع ہے, اور معنی ہے کہ نحن لسنا بھی اسکیاء کا معنی ہوگا ہم ذہین نہیں ہیں. الف ممدودہ کیا ہوتا ہے؟ لمبا الف ممدودہ. ممدود کا معنی ہوتا ہے جس کو مد, جس کو کھینچا گیا ہو. ممدودہ جس الف کو کھینچا گیا ہو. تو الف جو حمزہ ہے اس سے پہلے الف ہوتا ہے اور اس کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. جیسے اسکیاء میں الف ممدودہ ہے. ہوا عصب, وہ کمارہ ہے. جی ہاں بالکل, اصدقاء بھی غیر منصرف ہے. ہوا عزب لیس بعزب, وہ کمارہ نہیں ہے. المدرسون فی الفصول, المدرسون فی الفصول. اوپر ہم نے پڑھا تھا, یہ دیکھیں, ہوا تاجرن ہوا لیس بتاجرن, ٹھیک ہے نا. تو جو غائب کے صیغے ہیں, غائب کے صیغے, تو ان میں یہ جو ضمیر ہے نا, ضمیر کو علیحدہ سے ذکر کریں. لیس سے پہلے ہوا موجود ہے, ٹھیک ہے نا, اور ایسے ہی لیست سے پہلے ہم یہ لگائیں گے. المدرسون فی الفصول, جی ہاں, المدرسون لیسوا فی الفصول, المدرسون لیسوا فی الفصول, استاد کلاسوں میں نہیں ہیں. انت زکیۃ ہوا لیس بعزب, جی ہاں, انت زکیۃ. اب یہاں پر جو صیغہ ہے وہ مخاطب کا ہے, تو ایک عورت ذہین ہے. انت زکیۃ, تو ایک عورت ذہین ہے. اب یہاں پر لیسا کو استعمال کریں اور واحد مؤنث حاضر کا صیغہ استعمال کریں. لست بزکیۃ, انتم کبار, تم بڑے ہو. اور کبار کس کی جمع ہے؟ کبار جمع ہے کبیر کی, اور صیغہ مخاطب کا ہے. لہذا لیس سے جمع مذکر حاضر کیا استعمال ہوگا؟ لستم بکبار, تم بڑے نہیں ہو. الطالبات فی المکتبۃ, طالبات لائبریری میں ہیں. ایک ہوتا ہے مکتب اور ایک ہوتا ہے مکتبہ, جس کے آخر میں تا مدورہ ہوتی ہے, جس کے آخر میں گول تا ہوتی ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ مکتب استعمال ہوتا ہے ٹیبل کے لیے یا آفس کے لیے, جبکہ مکتبہ جس کے آخر میں تا ہوتی ہے وہ لائبریری کے لیے یا کتب خانہ جہاں کتابیں بیچی جاتی ہیں اس کو بھی مکتبہ کہتے ہیں. الطالبات, جی ہاں, الطالبات لسن فی المکتبۃ.
अंतुन तालिबातुन जुदुदुन, तुम नई तालिबात हो। तालिबातुन तो जमा है तालिबातुन की, और जुदुदुन किसकी जमा है जी? जदीदतुन, जदीदतुन की जमा है जुदुदुन। अंतुन तालिबातुन जुदुदुन, लस्तुन्ना बितालिबातिन, आगे जुदुद पर क्या एराब पढ़ेंगे? लस्तुन्ना बितालिबातिन जुदुदिन, क्योंकि जुदुदिन ये सिफत बनेगी तालिबातिन की, और मौसूफ और सिफत में मुताबकत होती है वाहिद, तस्निया, जमा, मुजक्कर, मोन्नस और मारफा, नकरा, और इसी तरह यानी एराब के अंदर इन तमाम चीजों में मुताबकत होती है। सही, मुब्तदा नहीं मौसूफ है। अगर मैंने मुब्तदा कहा है तो गलत कहा है, मौसूफ है ये, मौसूफ और उसके बाद सिफत, ठीक है। और फिर ये मौसूफ और सिफत ये मुताल्लिक, ये मजरूर बनेंगे बाहर पे जार के, और जार मजरूर मिलकर किसी और महजूफ फेल के मुतालिक बनेंगे, और फिर उसके बाद वो खबर बनेगी लस्तुन्न की, और लस्तुन्न जो फेल नाकिस है इसके अंदर अंतुन्न जमीर इसका इसम है। अत्तालिबात फिल मकतबती, तालिबात लाइब्रेरी में है। अत्तालिबात लस्न फिल मकतबती, तालिबात लाइब्रेरी में नहीं है। अंतुन्न तालिबातुन जुदुदुन, तुम नई तालिबात हो। लस्तुन्न बितालिबातिन जुदुदिन, तुम नई तालिबात नहीं हो। अंति ज़कियतुन, तू एक औरत ज़हीन है। लस्ती बिज़कियतिन, तू एक औरत ज़हीन नहीं है। ये नहीं बन सकता नई तालिबात, तो ये कलाम मुफीद नहीं है, ठीक है ना। नई तालिबात क्या हुआ उनको, नई तालिबात को, नई तालिबात के बारे में कोई खबर दे रहे हैं ना, तो या तो इनको मुब्तदा बनाएं या फिर कि उनके बारे में जो है यानी कोई खबर दें। जैसे तालिबातुन जुदुदुन जिना, नई तालिबात आई। दखलना, या फिर कोई भी और इससे पहले कोई लफ्ज लगा ले, जैसे तालिबातुन जुदुदुन साफरना, नई तालिबात सफर कर गई। तालिबातुन जुदुदुन खरजना मिनल फसल, नई तालिबात क्लास से निकल गई। तो इस तरीके से कोई ना कोई खबर देनी होगी। अब यहां पर अंतुन्ना तालिबातुन जुदुदुन में अंतुन्ना मुब्तदा है, तुम नई तालिबात हो। अंतुन्ना मुब्तदा, तालिबातुन मौसूफ, जुदुदुन सिफत, मौसूफ और सिफत मिलकर खबर हुई अंतुन्ना मुब्तदा की, मुब्तदा और खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं कि तालिबातुन जुदुदुन ये मौसूफ और सिफत बनकर, चाहे तो हम इसको मुब्तदा बनाएं और फिर उसके बारे में कोई और खबर दें नई तालिबात के बारे में। तालिबातुन लस्न बिजुदुदिन नहीं, फिर उसके बाद ये सीगा जो बनेगा ये गायब का बन जाएगा। तालिबात नई नहीं है, जुमला अगर बनाएं तो इसके अंदर यानी माना जो बनेगा ये गायब का माना बन जाएगा, जबकि हमें माना क्या चाहिए, तुम नई तालिबात नहीं हो, तुम नई तालिबात नहीं हो, जी हम मुखातब हैं। और उस सूरत में जो आप बता रहे हैं तालिबातुन लस्न बिजुदुदिन, ये बन सकता है, ठीक है ना, लेकिन फिर सूरत में मुखातब नहीं होगा। एक दो तीन इनका तर्जुमा, अस्सय्यारत जमीलतुन, गाड़ी खूबसूरत है। अना गनीयुन, मैं मालदार हूं। अंत फकीरुन, तुम मुहताज हो। लईस की गर्दान, अगर कोई लिख दे तो लिख दे, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये कितने सीगे हैं, 6 गायब के, 6 हाजिर के, 2 मुतकल्लिम के, 14 सीगे हैं।
अंतुन्न तालिबातुन जुदुदुन लस्तुन्न बितालिबातिन जुदुदिन। सवाल नंबर 6 है अजिब अनिल अस्इलतिल आतियति मुस्तामिलन लैस। जवाब दें आने वाले सवालात के लैस को इस्तेमाल करते हुए। अब पहले ये था कि हम जुमले के अंदर लैस को दाखिल कर रहे थे। अब आपसे सवाल किया जाएगा और आप उस सवाल का जवाब लैस के जरिए से देंगे। देखिए जैसे अब एक मिसाल है, हम सबसे पहले एक मिसाल को हल करते हैं, उसके बाद आप हल करेंगे इसे। क्या मुहंदिसुन इंजीनियर है, अबू का आपका अबू, क्या आपका अबू इंजीनियर है? अगर मैं आपसे उर्दू में पूछ रहा हूं और आपका अबू इंजीनियर ना हो तो आप उर्दू में क्या जवाब देंगे? मेरा अबू इंजीनियर नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर जुमला यूं बनेगा जी, जुमला यूं बनेगा कि सबसे पहले अबू का माना होता है आपके अबू, और अगर हमने माना देना हो मेरा अबू तो फिर काफ जमीर को हजफ करके मुतकल्लिम की जमीर या लगाएंगे और बन जाएगा अबी, अबी। और फिर उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे लफ्ज लईस दरमियान में, और फिर आखिर में आएगा मुहंदिसुन और उसके शुरू में हर्फ जर लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा? अबी लईस बिमुहंदिसिन, अबी लईस बिमुहंदिसिन। ला नहीं लगाएंगे, ला का माना भी होता है नहीं, और लईस के अंदर भी नहीं का माना मौजूद है। तो जुमले के अंदर तकरार हो जाएगा, जुमले के अंदर जो असल खूबसूरती है ना वो खत्म हो जाएगी। ला भी माना नहीं का दे रहा है और लईस भी नहीं का माना दे रहा है, तो हम कहेंगे अबी लईस बिमुहंदिसिन, अबी लईस बिमुहंदिसिन। ये नूरुन निसान का जवाब ठीक है। अ मुदर्रिसतुन उम्मुका, क्या आपकी अम्मी उस्तानी है? उसी तरीके से जवाब देंगे कि मेरी अम्मी नहीं है उस्तानी। सही, उम्मी लईसत बिमुदर्रिसतिन, मेरी अम्मी उस्तानी नहीं है। नंबर 3, अतुल्लाबुन इख्वतुका, क्या आपके भाई तुल्लाब हैं, तालिब इल्म हैं? जवाब ये देंगे कि मेरे भाई नहीं हैं तुल्लाब, मेरे भाई। क्या इसकी अरबी बनेगी? इख्वती, नहीं हैं वो। इख्वती लईसु, क्योंकि जमा मुजक्कर हैं, लईसु। नहीं, जो हमें तरीका जो है यहाँ सवाल किया जा रहा है कि क्या इसके शुरू में हर्फ यानी जवाब नहीं लाएंगे नाम या ला, तो नहीं, ये जवाब जो है वो नहीं लाएंगे, बल्कि जिस चीज के बारे में पूछा जा रहा है ना तो उसके बारे में जवाब देंगे, उसका यानी उसकी अरबी बनाकर जवाब देना है। तो जवाब होगा नंबर 3 का इख्वती लईसु बितुल्लाबिन, मेरे भाई तुल्लाब नहीं हैं। अमुमर्रिदतुन अखवातुका, क्या आपकी बहनें नर्सें हैं? जी हाँ, अखवाती लसना, क्योंकि जमा मोन्नस है और गायब है। अखवाती लसना बिमुमर्रिदातिन, मेरी बहनें नर्सें नहीं हैं। मुदर्रिसतुन अंत, अब मुखातब का सीगा आ गया, और अंत जिस सीगे के अंदर इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। आप जब जवाब देंगे मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, तो लईस से वो क्या आता है? मैं नहीं हूं, लस्तो। जी हाँ, आपसे कोई जवाब सवाल करेगा क्या आप उस्ताद हैं और आप उस्ताद ना हो, तो आप क्या जवाब देंगे? मैं उस्ताद नहीं हूं, मैं उस्ताद नहीं। अपने लिए मुतकल्लिम का सीगा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो यानी जुमला बनेगा लस्तु बिमुदर्रिसिन, लस्तु बिमुदर्रिसिन। अना लगा नहीं लगाएंगे क्योंकि अना ये पहले से लस्तु के अंदर मौजूद है।
जुदुदुन अंतुम, क्या तुम नए हो, जुदुदुन अंतुम, क्या तुम नए हो। अब मुखातब का सीगा आ गया, और मुखातब यानी जब उस तमाम लोगों से पूछा जाए और वो जवाब देंगे तो वो जमा मुतकल्लिम का सीगा इस्तेमाल करेंगे। जी, लस ना बिजुदुदिन, लस ना बिजुदुदिन। जी हाँ, ये कोई नूर है, वो नूरुन निसा, या इन्होंने सवाल करना था। जी हाँ, नूर, सवाल कीजिए। शेख, मेरा सवाल ये है कि एक्सरसाइज नंबर 5 में हमें कैसे पता चलेगा कि जुमला इस्मिया बनाना है या फेलिया? इस मिसालों में, इनमें ये इक़रा अल मिसालैन तुम अदखिल लैसा अलल जुमल आती है, ये मिसालें। अगर मश्क नंबर 5 के बारे में पूछ रहे हैं तो उन्होंने बतौर मिसाल के पहले ये जिक्र कर दिया है कि आपने इस तर्ज पर मिसालें बनानी है, वगरना जब आप खुद अरबी में बात कर रहे हों तो आप मुकल्लफ नहीं हैं, पाबंद नहीं हैं कि आप जुमला इस्मिया बनाएं या जुमला फेलिया बनाएं। लेकिन इन्होंने इन तमाम जुमलों को बनाने का हमें तरीक़ाकार जो बताया है वो ये है कि आप दो इसमों के दरमियान लईसा को दाखिल करेंगे, ठीक है ना। दो इसमों के दरमियान लईसा को, यानी यहाँ इसम है, ये यानी जमीर है, जमीर भी इसम है, और उसके दरमियान हुआ, उसके दरमियान जो है वो, और मिनल याबान के दरमियान लईसा दाखिल करेंगे। ये हमें तरीक़ेकार बताया गया है और यही से पता चला कि हमें जुमला अस्मिया बनाने हैं। हाँ, ये है कि हम देखेंगे कि जो हाजिर के सीगे हैं, हाजिर के सीगे या मुतकल्लिम के सीगे, तो मुतकल्लिम और हाजिर के सीगे में जमीर लगाने की जरूरत नहीं होती, तो वो खुद ब खुद जो जुमले बन जाएंगे वो फेल के बन जाएंगे। जैसे हमने एक मिसाल दी थी, अंत फकीरुन लस्त बिफकीरिन, अंत फकीरुन से लस्त बिफकीरिन, क्योंकि लस्त के अंदर पहले से अंत मौजूद है, और लस्त वैसे इसम है या फेल है, फेल है, तो जुमला फेलिया बन जाएगा। तो कहने का मकसद और खुलासा ये हुआ कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जुमला इस्मिया बनाना है या जुमला फेलिया बनाना है। तो पहली बात यह है कि उन्होंने खुद तरीक़ेकार बता दिया है कि एक जमीर और उसके बाद आपने लईसा को ले आना है, इल्ला ये कि वो जो जमीरें हैं वो हाजिर की हों या मुतकल्लिम की हों, तो फिर उस सूरत में जब लईसा लगाएंगे तो वो सीगा इस्तेमाल करेंगे कि जो जमीर के मुताबिक होगा, हाजिर के लिए या मुतकल्लिम के लिए। और नंबर 7 है अजदीदतुन सय्यारतुका, क्या आपकी गाड़ी नहीं है? जवाब देंगे मेरी गाड़ी नहीं है नई। जी हाँ, सय्यारती लैसत बिजदीदतिन। सवाल नंबर 7 है, कहते हैं कि युवज्जिहुल मुदर्रिसु इला कुल्लि मिनत तुल्लाबि अस्इलतन यकूनु जवाबुहा बिन्नफी व यरुद्दु अलैहा तालिबु मुस्तामिलन लस्तु नहवु मिन अमेरिका अंत। जी, अब एक सवाल यानी एक मश्क बता रहे हैं कि जिसको मुंह जुबानी करना है। कह रहे हैं कि युवज्जिहुल मुदर्रिसु, पेश करे उस्ताद, युवज्जिहुल मुदर्रिसु, पेश करे उस्ताद, इला कुल्लिम मिनत तुल्लाब, तमाम तलबा की तरफ, अस्इलतन, सवालात, आने वाले जो सवालात हैं उस्ताद
یہ سوالات تمام طلباء کے سامنے پیش کرے. یکون جوابها بالنفی، اس کا جواب نفی میں ہوگا. وَيَرُدُّ عَلَيْهَا الطَّالِبُ مُسْتَعْمِلًا لَسْتُ، اور جواب دے گا اس پر طالب مستعملاً لست کو استعمال کرتے ہوئے. مثال کے طور پر امن امریکہ انت، کیا آپ امریکہ سے ہیں؟ آپ جواب دیں گے نہیں ہوں میں امریکہ سے. کیا بنے گی عربی؟ لست من امریکہ. مریض انت، کیا آپ بیمار ہیں؟ لست بمریض. جی بمریض، لست بمریض. متزوج انت، کیا تم شادی شدہ ہو؟ جواب دیں گے لست. اپنے بارے میں جب جواب دیں گے تو استعمال کریں گے لست بمتزوج، میں شادی شدہ نہیں ہوں. مہندس انت، کیا آپ انجینئر ہیں؟ لست بمہندس، میں انجینئر نہیں ہوں. طبیب انت، کیا آپ ڈاکٹر ہیں؟ لست بطبیب، میں ڈاکٹر نہیں ہوں. تاجر انت، لست بتاجر، لست بتاجر. تو پہلے لست استعمال کریں گے اور بعد میں وہ اسم لے آئیں گے کہ جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، اس کے شروع میں حرف جر داخل کریں گے. جوعان اجوعان انت، کیا آپ بھوکے ہیں؟ لست بجوعان، ابھی ہم نے پڑھا. لست من امریکہ، من امریکہ انت، لست من امریکہ. ٹھیک ہے، تو یہ ایک قسم کی مشق ہے. تو جواب دینے کے لیے جب اپنے بارے میں تو لست استعمال کریں گے اور آگے وہ اسم ذکر کریں گے. بھوکے کے لیے تو ہم نے لفظ پڑھ لیا جوعان. پیاسے کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ پیاسا. پیاسا لفظ استعمال کیا تو مجھے پیاس لگ گئی. جی ہاں، عطشان. سوال کریں کیا آپ پیاسے ہیں؟ آپ ان سے سوال کیجئے کیا آپ پیاسے ہیں؟ پہلے ان کو سوال تو کرنے دیں تو پتا چلے کہ وہ سوال کر کیا رہے. نہیں، پہلے ابھی جو ہم جو سیکھ رہے ہیں نا، فی الحال اس کو رکھیں. جی عطشان. جی ہاں، اور جواب دیں میں پیاسا نہیں ہوں. لست بعطشان. یہ جملے کو مکمل کرنے کے لیے. جی، اور آپ ان سے پوچھیں کیا آپ امریکہ سے ہیں؟ من امریکہ انت. جی، اگلا سوال کریں کیا آپ استاد ہیں؟ مدرسن. مدرسن انت، کیا آپ استاد ہیں؟ مدرسن انت. آپ جواب دیں لست بمدرس. ٹھیک ہے. انت مدرسن. جی ہاں. بعطشان میں با کا استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ ہم شروع سے بتا رہے ہیں کہ کچھ افعال جو ہوتے ہیں وہ ان کو معنی کی تکمیل کے لیے حرف جر کا سہارا لینا پڑتا ہے. ویسے حرف جر جو ہے وہ اس کا بذات خود کوئی معنی نہیں ہوتا، لیکن جملے کو مکمل کرنے کے لیے جو ہے وہ حرف جر کا استعمال کرتے ہیں.
सवाल नंबर 8 है कि इक़राल मिसाल, मिसाल पढ़ें, तुम्मा अदखिल इन्ना अलल जुमलिल आतियती, फिर दाखिल करें इन्ना को आने वाले जुमलों पर। अल जुमल जुमलतुन की जमा है। जी एक मिनट, जी सवाल कीजिए। जी आप पूछ रहे हैं, बता रहे हैं? जी हाँ, जी जी जी। तो अभी हमने इसे शुरू नहीं किया जी, अभी इस तरफ आ ही रहे। ली सलासो अखवातिन, ली मेरे लिए, सलासो अखवातिन तीन बहनें हैं, मेरे लिए तीन बहनें हैं। जी अब जिस तरीके से हम उर्दू में क्या इस्तेमाल करते हैं, मेरे लिए नहीं कहते, मेरी कहते हैं। जैसे अगर आप किसी भी चीज के बारे में उसकी निस्बत अपनी तरफ कर रहे हो, जैसे हम कहेंगे कि ये मेरी गाड़ी है, तो क्या कहेंगे? या मेरे पास एक गाड़ी है, इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मेरे पास एक गाड़ी है। जबकि अरबी में क्या इस्तेमाल करते हैं? ली सय्यारतुन, मेरे लिए एक गाड़ी है, ठीक है ना। तो ये अरबी में इस्तेमाल करने का एक तरीक़ेकार है। तो बहरहाल अभी हम इस बात की तरफ आते हैं, कहते हैं कि ली सलासु अखवातिन, ली जो है लाम हर्फ जर और या मुतकल्लिम की मजरूर, ये आपको जो नजर आ रहा है ये खबर है, खबर। और सलासु अखवातिन ये मुब्तदा है। खबर पहले आती है या मुब्तदा? मुब्तदा। इसी वजह से कह रहे हैं कि इसका असल ये है कि सलासु अखवातिन ली, सलासु अखवातिन मुब्तदा है और ली खबर है। असल में जुमला यूं है, लेकिन इसकी तरतीब उलट दी कि ली सलासु अखवातिन, अरबी जबान का ये उसलूब है। अब जब इन्न दाखिल करेंगे किस पर? सलासु अखवातिन ली पर, तो इन्न को शुरू में ले आएंगे तो इन्न सलास अखवातिन ली हो जाएगा। इन्न किस पर अमल करेगा? सलासा पर अमल करेगा। लेकिन जब हम जुमले को उसी तरतीब से ले आए तो शुरू में इन्न ले आएंगे, फिर ली, फिर सलासा अखवातिन, और इन्ना अमल करेगा सलासा पर। कुछ आया समझ? ली सलात अखवातिन में ली खबर मुकद्दम है, सलात अखवातिन ये मुब्तदा मुअख्खर है। जब इसके ऊपर इन्न दाखिल करेंगे तो इन्न अमल करता है मुब्तदा पर, ठीक है, इन्न अमल करता है मुब्तदा पर, तो इन्न अमल करेगा सलास अखवातिन पर, सलासा को नसब देगा इन्न। इन्न ली सलासा अखवातिन, खबर पहले आ गई है, लेकिन इन्न बहरहाल इस खबर को जो है वो क्रॉस करके आगे सलासा पर अमल करेगा। इन्ना क्यों इस्तेमाल किया जाता है? कलाम के अंदर पुख्तगी पैदा करने के लिए, यकीन दिलाने के लिए। अच्छा, एक और बात यह है कि अरबी ज़बान में एक को क्या कहते हैं? एक, एक को वाहिद कहते हैं, सही है ना। अगर हम ये कहना चाहते हो कि दाखिल हुआ एक तालिब इल्म, तो कैसे कहेंगे? अगर हमें एक भी जो है वो इजाफी दाखिल करना हो तो फिर क्या कहेंगे? और उसको गिनना हो, मतलब यानी बहुत सारे तलबा मौजूद हो, उनमें से एक दाखिल हो, ठीक है ना, और पूछें कि कितने तालिब इल्म दाखिल हुआ, आप जवाब दें एक तालिब इल्म दाखिल हुआ, तो क्या होगा? दखला दखला तालिबुन वाहिदुन। तो एक और दो, अरबी ज़बान में एक और दो ये हमेशा सिफत होकर वाक़े होते हैं।
ये हमेशा सिफत होकर वाक़ होते हैं। दखला तालिबुन वाहिदुन, दखला तालिबानी इस्नानी, दखला तालिबतुन वाहिदतुन और दखला तालिबतुन वाहिदतुन, दखला तालिबतानी इस्नतानी। तो एक और दो ये मौसूफ की सिफत के तौर पर वाक़ होते हैं, मौसूफ की सिफत आते हैं, ठीक है। और सिफत पहले होती है, मौसूफ पहले होता है? मौसूफ होता है। समझ नहीं आया? मौसूफ जी। फिर यह भी मसला आएगा कि बोर्ड रखने का क्या फायदा, क्योंकि इस पर लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इनको तो मेरे ख्याल में इनके कैमरा में दिखाई तो दे रहा है, देखें। तो हम बड़े बड़े अल्फाज लिखें। वाहिदुन और इस्नान, ये दोनों सिफत के तौर पर आते हैं। गिनतियां हैं लेकिन दोनों सिफत के तौर पर आते हैं। ये दोनों गिनतियां हैं लेकिन सिफत के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जैसे हम कहेंगे दखला तालिबुन वाहिदुन, दखला तालिबानी इस्नानी। और अगर एक तालिबा दाखिल हुई तो हम कहेंगे दखलत तालिबतुन वाहिदतुन, दखलत तालिबतानी इस्नतानी। तो एक और दो ये दोनों हमेशा सिफत के तौर पर वाक़े होते हैं, ठीक है। और सिफत कहां आती है? मौसूफ के बाद आती है। तो इससे पहले मौसूफ होगा और बाद में सिफत होगी। ये इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जो अगली बात है वो हमें आसानी से समझ आए। फिर उसके बाद गिनती के दो के बाद आता है तीन, ठीक है ना। तीन सलासुन, क्या माना होगा इसका? तीन मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। और सलासतुन तीन मोनस के लिए। आप मेरे साथ रहें ताकि जो है वो आपको जो अभी समझाने जा रहे हैं ना वो बात समझ आ जाए। सलासुन तीन मुज़क्कर के लिए और सलासतुन तीन मोनस के लिए। लेकिन अगर जिसको गिना जा रहा है, जिसको हम गिन रहे हैं, अगर वो मोनस है, जिसको गिना जा रहा है अगर वो मोनस है, तो एक और दो में पहले मौसूफ आता था, बाद में सिफत आती थी। जबकि तीन से लेकर आगे क्या होगा? गिनती पहले आएगी और जिसको गिना जाएगा वो बाद में आएगा। एक और दो में जिसको गिना जा रहा था वो पहले था और गिनती बाद में थी। एक और दो में जिसको गिना जा रहा था वो पहले था और गिनती बाद में थी। जबकि तीन से लेकर आगे तक जो गिनती होती है वो पहले आती है और जिसको गिना जा रहा होता है वो बाद में आता है। आई बात समझ में यहां तक? अरबी ज़बान में गिनती को क्या कहते हैं? आदद। आगे हम गिनती विनती ये लफ्ज छोड़ देंगे, आदद इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जिसको गिना जाता है उसको क्या कहते हैं? मादूद।
दखला तालिबुन वाहिदुन, मेरी तरफ तवज्जो दें, दखला तालिबुन वाहिदुन में आदद क्या है? वाहिदुन, और मादूद क्या है? तालिबुन। दखला तालिबुन वाहिदुन, पहले मादूद आया बाद में अदद आया। दखला तालिबानी इस्नानी, इसमें मादूद क्या है? तालिबानी, और अदद क्या है? इस्नानी। एक और दो में अदद पहले आता है या मादूद? मादूद पहले आता है, जबकि 3 से लेकर आगे तक मादूद यानी अदद पहले आएगा और मादूद बाद में आएगा। 3 से लेकर आगे तक, आखिर तक जितनी भी गिनती हो, पहले अदद आएगा बाद में मादूद आएगा। यहां तक बात समझे? ठीक। अगली बात यह है कि हमने कहा था कि सलासुन मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, सलासतुन मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जिसको गिना जा रहा है यानी मादूद, मादूद अगर मुअन्नस है, मादूद अगर मुअन्नस है तो अदद मुज़क्कर इस्तेमाल होगा, और अगर मादूद अगर मुज़क्कर है तो अदद मुअन्नस इस्तेमाल होगा। उलट हो जाएगा मामला। 1 और 2 में जरूरी था कि मुवाफिक होते, तालिबुन वाहिदुन, तालिबतुन वाहिदतुन, तालिबानी इस्नानी, तालिबतानी इस्नतानी, जबकि यहां पर सलासुन है, सलासुन के बाद जो लफ्ज आएगा वो जिसको गिना जा रहा है वो क्या होना चाहिए? मुअन्नस होना चाहिए। अब देखें किताब में, ली सलासु अखवातिन, ली सलासु अखवातिन, सलास मुज़क्कर है और उसके बाद जो मादूद आया है वो मुअन्नस है। ठीक है, सलासु मुज़क्कर है और अखवातिन मुअन्नस है, तो 3 से लेकर फिलहाल हम जो है वो इसको 10 तक ले जाते हैं। 3 से लेकर 10 तक जो मादूद होता है वो बाद में आता है, अदद पहले आता है। ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि 3 से लेकर 10 तक जो मादूद है अगर मुअन्नस है तो अदद मुज़क्कर होगा, मादूद अगर मुज़क्कर है तो अदद मुअन्नस होगा। अच्छा, अखवातुन ये उख्तुन की जमा है, बहनें, और अगर हम अखुन की जमा ले आए तो क्या होगी? वो क्या होगी? इखवतुन, इखवतुन। इसका माना है ली सलास अखवातिन, मेरी 3 बहनें हैं। अब आप थोड़ा सा सोचें कि अगर हम यहां पर अखवातुन की जगह इखवतुन ले आए, अगर हम अखवात की जगह इखवतुन ले आए और इखवतुन मुज़क्कर है तो क्या तब्दीली करेंगे? शाबाश, सलासतुन इस्तेमाल करेंगे। ली सलासतु, सलासतु इखवतिन, सलासतु इखवतिन। ठीक है। अच्छा, 1 और 2 में, 1 और 2 में आदद और मादूद एक दूसरे के मुताबिक होते हैं, जबकि 3 से लेकर 10 तक, 3 से लेकर 10 तक जिसको गिना जाता है ना मादूद, वो जमा होता है और मजरूर होता है। 3 से लेकर 10 तक देखिए, सलास अखवातिन जमा है और मजरूर है। अगर हम ये कहें ली सलास अखवातिन, जी कुछ सवाल है? ली सलास अखवातिन हम ये इस्तेमाल करना चाहें कि मेरी 4 बहनें हैं, तो सलासुन की जगह पर क्या इस्तेमाल करेंगे? अरबाउ या अरबातु? अरबाउ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो मादूद है वो मुअन्नस है, तो लिहाजा अरबाउ इस्तेमाल करेंगे। मेरी 5 बहनें हैं, तो 5 की अरबी क्या आएगी? और मुज़क्कर ली खम्सु अखवातिन, और 6 की अरबी क्या होती है मुज़क्कर के लिए? सित्तुन, ली सित्तु अखवातिन। ठीक है। और 7 को क्या कहते हैं? सबउन, अगर ता लगाएंगे तो मुअन्नस हो जाएगा, ली सबउ अखवातिन। 8 को क्या कहेंगे? समानुन होता है, समानुन, समानुन, ली समानु अखवातिन। और 9 को क्या कहते हैं? तिसउन, और मुअन्नस क्या इस्तेमाल होगी?
तिसातुन, यहां पर हम तिसौन लगाएंगे, ली तिसौ अखवातिन, और 10 की मुजक्कर क्या आती है, एक होता है अशरुन या आशरतुन, ठीक है ना, अशरुन या आशरतुन। तो हमने ये कहना है कि मेरी 10 बहनें हैं, तो क्या इस्तेमाल करेंगे, ली आशरो अखवातिन। और अगर हमने बहनों की जगह पर भाई लगाना हो तो सारी जो गिनतियां हैं इनके आखिर में ता लग जाएगी, क्योंकि अगर मादूद अगर मुजक्कर है तो अदद मोनस होगा, ठीक है। हाफिज उमर फारूक, वीडियो बंद कर दीजिए। और इन्ना ये हर्फ मुशब्बा बिल फेल दाखिल होता है किसके ऊपर, मुब्तदा के ऊपर, चाहे मुब्तदा पहले आ रहा हो या बाद में आ रहा हो, बिहरहाल या अमल मुब्तदा पर ही करेगा। तो इंशाल्लाह यहां से कल हम आगे बढ़ेंगे, टाइम हो चुका है, तो कोई सवाल है तो पूछिए। मादूद मुजक्कर हो तो अदद मोन्नस, मादूद मोन्नस हो तो अदद मुजक्कर, जी हाँ, मादूद मोन्नस हो तो अदद मुजक्कर होगा, बिल्कुल। और 3 से लेकर 10 तक जो मादूद है, जिसको गिना जा रहा है, वो जमा होगा और मजरूर होगा, ये भी हमेशा याद रखें। 3 से लेकर 10 तक जिसको गिना जाता है मादूद, जो कि गिनती के बाद आता है, वो जमा होगा और मजरूर होगा। जब इन्न लगेगा तो अदद पर फतहा आएगा, जी हाँ, मुजाफ होकर इस्तेमाल होगा, ठीक है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।